Good afternoon, everyone. So, our topic is scope of e-commerce. Okay, first topic is scope of e-commerce. So, scope of e-commerce मतलब scope का मतलब ही होता है कि कौन से areas में e-commerce applicable है. So, the first point is it is a general concept covering any form of business transactions or information exchange executed using information and communication technology. जब भी हम कोई बिज़नेस या ट्रांजैक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ एंड यूजिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ दैट इज़ ICT, ये ई कॉमर्स ही होता है. नेक्स्ट वन देखो, इट इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल. इट टेक्स प्लेस बिटवीन कंपनीज and their customers or between companies and public administrators. So if you could recall from the last video, I have already told you how e-commerce models work, that is B2B, C2B, B2C. So all such areas in which e-commerce is applicable, it includes business to business, customers to customers, business to customers, business to public administrations. मतलब different areas में e-commerce applicable है. तो यहाँ पे यही चीज़ बोला गया है. इसके साथ देखो यहाँ पे बोला है कि 3 कैटेगरीज़ होती है ई कॉमर्स की. एक है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, एक है इंटरनेट कॉमर्स एंड एक है EDI. ना ये डायग्राम उतना भी ज़रूरी नहीं है तुम लोगों के लिए, बिकॉज कॉमर्स मतलब भी हमें पता है कि अगर ऐसा क्वेश्चन भी आया दैट राइट डाउन द स्कोप ऑफ ई कॉमर्स, देन यू कैन ऑल्सो राइट द डिफरेंट मॉडल्स और इसके पॉइंट वाइज तुम लोग लिख सकते हो कि कौन से एरियाज़ में ई कॉमर्स एप्लीकेबल है. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, वी हैव फंक्शंस ऑफ ई कॉमर्स. सो फंक्शंस ऑफ ई कॉमर्स, फर्स्ट वन क्या है? मार्केटिंग. सो पहले क्या होता था देखो, डोर टू डोर मार्केटिंग होता था प्रोडक्ट्स का. उसके बाद मेल्स, कैटलॉग, लीफलेट्स न्यूज़पेपर्स के साथ हमें मिलता था, या फिर न्यूज़पेपर में भी हमें 1-2 पेजेस ऐसे देखने को मिलते थे जहाँ पे डिस्क्रिप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं प्रोडक्ट्स के बारे में, कहाँ पे मिल रहा है, क्यों बेटर है, क्या क्या फ़ीचर्स है, क्या क्या क्वालिटीज़ है. या फिर डोर टू डोर भी पहले हम लोग के यहाँ पे तुम लोगों ने कितना देखा है मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं काफ़ी छोटी थी तो एक बैग लेके लोग आते थे और डिफरेंट प्रोडक्ट्स उनके बैग में रहता था, सैम्पल प्रोडक्ट्स, और फिर लीफलेट्स भी रहता था. वो लोग हमें डिस्क्राइब करते थे कि कौन सा प्रोडक्ट क्या है, क्यों बेटर है. और मैनी अ टाइम्स वी यूज़ टू गेट फूल्ड, क्योंकि वो सब फेक प्रोडक्ट्स रहती थी और तब हमारे पास वैसा नॉलेज भी नहीं था और ना ही जागो ग्राहक जागो का ऐड आता था. But nowadays, with the help of e-commerce, it has shifted to television, digital media, social media, where we are getting informations about each and every product very easily. Next is human resource management. So, since you have a paper on it, you know it better that online recruitment, work from home, then your entrepreneurs, they're working on different projects, they're replacing permanent employees, then they are just hiring other people from different corners of the world who are working for them in the virtual media. So they don't have to physically be present at the office, but they are working for them, for the organization. So this is what human resource management is developing itself in the e-commerce world, and this is how e-commerce is helping human resource management as well. It's a vice versa relationship. Next one is your business law and ethics. We know that the laws, rules and regulation, it keeps on changing, and since now the market is a global market जहाँ पे different countries के बीच में transactions हो रहे हैं, तो so issuing a copyright law, privacy of customer information, all these things can be easily kept and all these things can be easily maintained with the help of e-commerce. Next one is your MIS, that is Management Information System, which includes designing and implementation of e-business system, integration with different companies, analysis. Let's just say for example job analysis, which I have already explained to you yesterday, that job analysis is also done with the help of internet. डेटा एनालिसिस किया जाता है, मैंने कल ही बोला है. सो दिस इज़ हाउ MIS इज़ ऑल्सो getting benefited.
Next one is your product operation and management. We know that product has a life cycle just like us, from its launching time to its declining period. So it takes literally seconds to deliver digitalized products and services electronically. Similar, the time for processing orders can be reduced by more than 90% from days to minutes. So product operation and management का एक और example है, that is online shopping, which we are like doing. जो देखो इस पेंडेमिक में भी हम कुछ ना कुछ जो प्रोडक्ट्स है वो इजीली मंगवा पा रहे हैं, जो चीज़ अगर सिर्फ यहाँ पे ट्रेडिशनल बिजनेस रहता तो पॉसिबल नहीं होता. एंड देन वी वुड हैव रियलाइज्ड हाउ लाइफ कैन हिट अस हार्ड इफ़ यहाँ पे कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग का स्कोप नहीं रहता, बिकॉज़ हम कुछ भी बाहर से नहीं मंगवा पाते और यहाँ तो अभी कुछ मिल नहीं रहा है. सो दिस इज़ हाउ आवर लाइफ इज़ बिकम सोफिस्टिकेटेड विद द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स. नेक्स्ट वन इज़ योर फाइनेंस एंड अकाउंटिंग. वी नो दैट ऑनलाइन बैंकिंग इज़ पॉसिबल, देन ऑडिटिंग भी हो रहा कर सकते हैं ऑनलाइन, ट्रांजैक्शन कॉस्ट निकालना, उसके बाद ऑल्सो एवरीथिंग आई वुड लाइक टू से दैट स्टॉक को मैनेज करना, शेयर मार्केट को मैनेज करना, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ ई कॉमर्स. एंड लास्ट वन इज़ इकोनॉमी, दैट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ई कॉमर्स ऑन लोकल एंड ग्लोबल इकोनॉमीज, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ अ डिजिटल एंड नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी एंड हाउ दिस फिट्स into this economic theory. So we know that for the growth of an organization, the economy also has to be strong, and e-commerce definitely helps a lot in making our economy strong by digitalizing the different areas of the different sectors, that is including our tertiary sector, our secondary sector. Primary sector I would not say, but secondary tertiary sector definitely depends a lot on e-commerce, and which ultimately helps to strengthen our economy. Then e-commerce application, where e-commerce is applicable. So the first one is e-marketing, that I have already told you. Marketing abhi that is B2B, B2C, C2C, all such things includes e-marketing. e-advertising मतलब social network में हम लोग को advertising मिल रहा है. यूट्यूब में अगर हम लोग वीडियो देख रहे हैं तो हम लोगों को एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल रहा है. टेलीविज़न में तो मिल ही रहा है, प्रिंट मीडिया में मिल रहा है, न्यूज़पेपर्स में मिल रहा है. सो this is how e-advertising is going on. Then your e-banking, yes, we don't have to visit the bank. If you want to take out money, we are using ATM. If you want to deposit money, we are using Google Pay, Paytm, Phone Pay, all other things. So if we want to pay our bills, we are using Google Pay, Phone Pay. ट्यूशन फ़ीस हम लोग को इसके थ्रू मिल रहा है, हम लोग को बिल्स हम लोग पे कर पा रहे हैं, मोबाइल का रिचार्ज हो रहा है, केबल का रिचार्ज हो रहा है. सो इट हैज़ लिटरली मेड आवर लाइफ वेरी ईजियर, एंड इट हैज़ ऑल्सो, आई वुड लाइक टू एट दिस पॉइंट, इट इज़ ऑल्सो हेल्पिंग अस टू मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग विच इज़ द नीड ऑफ द आवर. नेक्स्ट वन इज़ योर ई लर्निंग. ई लर्निंग क्या है, देखो कि जो अभी के दिन में जो अभी जो तुम लोग को वीडियो मिल रहा है, इट इज़ ई लर्निंग, राइट. दिस इज़ पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ ई कॉमर्स. इफ़ यू आर ऑल्सो लाइक वॉचिंग वीडियोज़ ऑफ डिफरेंट अकेडमीज़, इफ़ यू आर गोइंग लाइक doing some sort of other एक्टिविटीज़, या फिर अगर कोई गाना सीख रहा है तो भी वो ई लर्निंग के थ्रू हो रहा है. ऑनलाइन डांस हो रहा है, जुम्बा हो रहा है, तो भी वो ई लर्निंग के थ्रू आ रहा है. उसके बाद अगर कोई और तुम लोग कोर्सेज़ कर रहे हो, दैट ऑल्सो इज़ कंसिडर्ड एज ई लर्निंग. सो वेब बेस्ड लर्निंग, कंप्यूटर के थ्रू डिस्टेंस लर्निंग, ऑल सच थिंग्स कम्स अंडर ई लर्निंग. एंड लास्ट वन इज़ योर मोबाइल कॉमर्स. इट इज़ ऑल्सो नोन एज एम कॉमर्स. इट इज़ द एबिलिटी टू कंडक्ट कॉमर्स एज ए मोबाइल डिवाइस सच एज मोबाइल फ़ोन. मतलब बैंक के थ्रू जो हम लोग, मैंने जो बोला कि गूगल पे, फ़ोन पे, इन सब में देखो ये हम लोग कंप्यूटर का यूज़ नहीं करके मोबाइल के थ्रू भी हो रहा है. सो आवर मोबाइल इज़ ऑल्सो एक्टिंग एज अ ऑब्जेक्ट विच इज़ नॉट ओनली हेल्पिंग अस टू talk with each other but also to do all other activities which are really making our life easy with the help of e-commerce. So this is what e-commerce, mobile commerce is all about, जहाँ पे different service like मोबाइल के थ्रू हम लोग टिकट्स करवा पा रहे हैं, उसके बाद गेम्स खेल पा रहे हैं, डिस्काउंट्स ले रहे हैं, वेदर चेक कर रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं,
शॉपिंग कर रहे हैं, स्पोर्ट्स देख रहे हैं. सो ऑल सच थिंग्स इज कॉल्ड एज एम कॉमर्स. नेक्स्ट वन इज़ योर ऑनलाइन शॉपिंग. आई डोंट थिंक सो आई हैव टू एक्सप्लेन यू वेदर योर लाइक अभी के दिन में तो डेफिनेटली नॉट, बिकॉज ऑनलाइन शॉपिंग वी ऑल आर लाइक it is an integral part of our life. I would like to say online shopping अगर कुछ भी नहीं कर रहे then also we are browsing something or other on it. So it has made our life very much easier, and most importantly we are also doing credit purchases, right? If we are purchasing something, then it's not mandatory that we have to pay the amount right now. We have the time of 5 to 10 days at least for paying the amount. So उसके बीच में भी अगर arrange हो जा रहा है then also it's a very big thing, जो चीज़ traditional business में possible नहीं है. When we are visiting a shop, when we are purchasing something, we have to make the payment instantly rather than having the time to arrange it in 5 to 10 days. So this is the advantage of online shopping. Apart from the other fact, I know online shopping के बारे में तुम लोगों को सब कुछ पता है. 24/7 अवेलेबल है. फिज़िकली जा नहीं सकते, ऐसे घर में बैठ के हज़ारों चीज़ें देख सकते हैं. उसके लिए पे भी नहीं करना पड़ रहा है. डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, गिफ्ट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, वाउचर्स यूज़ कर सकते हैं, प्रमोशनल कोड्स यूज़ कर सकते हैं. सो एंड लास्ट वन इज़ योर एंटरटेनमेंट, दैट इज़ वीडियो गेम, टेलीविज़न, मोबाइल्स में गेम, मूवीज़ लाइक हम लोगों को अभी अमेज़न प्राइम, नेटफ्लिक्स, सोनी लिव, सब कुछ में इतने सारे मूवीज़ देखने को मिल रहे हैं, जो चीज़ शायद अगर नहीं होता तो पेंडेमिक में हमें ये भी एंटरटेनमेंट नहीं देखने को मिलता. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस पेंडेमिक बिकॉज यू कैन इंक्लूड दिस इन योर आंसर, लाइक एटलीस्ट यूटिलाइज दिस पेंडेमिक फॉर समथिंग, क्योंकि इसने तो वैसे भी हमारे लाइफ को ख़राब करके रखा है. तो क्यों ना इसको आंसर्स में इंक्लूड करके लिखा जाए, ताकि जो आंसर है वो लाइक इट वुड शो दैट हाउ लिटरली वी हैव यूटिलाइज्ड ई-कॉमर्स, एंड नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट, बट जस्ट फॉर द like genuinely we have used it, and this pandemic has taught us something more. So use it in your answer. And this is the end of this video, but I would like to give you a homework which you will submit to me when I'll tell you. But the question is, write the answer in such a way कि how e-commerce has made our life easier in this pandemic. I would like you to answer this. The mark is 5 marks. So how you will upload it, I will let you know in the next class. But I want you to answer this, that how e-commerce has made our life easier in this pandemic. Okay? इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछना.